Hello students, how are you? I hope you all are fine and you must be doing your assignments and homework regularly. Today I am here to do one chapter of science, chapter number 4, Metals and Non-Metals. In this chapter we are going to study about the physical properties of metals and non-metals, chemical properties of metals and non-metals, and what are the uses of metals and non-metals. Students, let's start with our chapter metals and non-metals. Occurrence of metals and non-metals. Out of the 92 naturally occurring elements, 70 are metals and about 22 are non-metals. Students, you know, in the periodic table, we see many elements, 92 elements are present. Elements, for example, copper, silver, hydrogen, oxygen, all these are pure substances and these are known as elements. And out of those elements, if we see, some are metals and other are non-metals. Some elements show properties of both metals and non-metals and they are known as metalloids. Students, we will see after we study the properties of metals and non-metals, we will see there will be some elements which have the properties of both types. Some properties are like those of metals and others are those of non-metals, and these will be known as metalloids. Only some metals like gold, silver, platinum are found in the free state. अब हम देखेंगे सिर्फ कुछ ही metals होती हैं जो कि freely occur करती हैं. Whereas most metals are found in the combined state. किसी न किसी चीज के साथ combine रहती है. For example, oxides, sulfides, carbonates, सिलिकेट्स. अब वो क्या होगा, मेटल या तो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर मिलती है या सल्फर के साथ या कार्बन के साथ या सिलिका के साथ. तो ऐसे मेटल्स को हम क्या कहते हैं, दे आर फाउंड इन द कंबाइंड स्टेट. सम नॉन मेटल्स आर फाउंड इन द फ्री स्टेट. अब क्या होते हैं, जो नॉन मेटल्स होते हैं कुछ होती हैं जो कि फ्री स्टेट में पाई जाती हैं, जैसे हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, एंड सम आर फाउंड इन फ्री एंड कंबाइंड स्टेट लाइक सल्फर, फॉस्फोरस एक्सेट्रा. तो हम देखेंगे कि कौन सी मेटल्स फ्री में और कौन सी कंबाइंड स्टेट में पाई जाती एंड एग्जैक्टली होती क्या हैं. So we are going to study about the physical properties of metals and non-metals. Physical property यानी कि देखने में वो metals कैसी हैं. Metals are solids. अब देखिए क्या होता है, जनरली जो metals हैं वो solids होती हैं, but exceptions are always there. जो mercury है वो आपको मालूम है liquid state में होता है. Mostly the metals कैसी होती हैं, किस state में होती हैं, solid state में होती हैं. Metals are हार्ड. अब क्या होता है, मेटल जो है वो हार्ड होती हैं, जनरली बहुत हार्ड होती हैं, एक्सेप्ट सोडियम, पोटेशियम जो कि बहुत सॉफ्ट होती हैं. मेटल्स हैव मेटालिक लस्टर. मेटल जो होती हैं देखने में चमक होती है, उनके अंदर लस्टर होती है, मतलब मेटल की एक अपनी, आप देखिए गोल्ड को देखिए, सिल्वर देखिए, तो क्या होता है उनकी एक अपनी चमक होती है. तो मेटल्स जो है दे हैव मेटालिक लस्टर. Metals have high melting points. अब क्या होता है कि उनका जो melting point होता है बहुत ज़्यादा high होता है, boiling point भी बहुत ज़्यादा high होता है, मतलब बहुत ज़्यादा temperature देती है तभी जो है वो boiling state में आती हैं. Metals are malleable, means they can be beaten into sheets. अब क्या होता है, metals malleable होती है. malleable वो property होती है जिसके द्वारा हम metal से sheets बना सकते हैं. Whereas metals are also ductile, यानी कि metals can be drawn into thin. अगर हम वायर बनाना चाहें तो metal से जनरली क्या करते हैं, हम वायर्स बना सकते हैं. तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं ductile. Metals are good conductors of heat and electricity. अब क्या होता है, मेटल से हम हीट भी पास ऑन कर सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी भी पास ऑन कर सकते हैं. मीन्स मेटल को गर्म भी किया जा सकता है और उससे बिजली का करंट भी पास कर सकते हैं. तो इसलिए हम क्या कहते हैं, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. मेटल्स आर sonorous. अब क्या होता है, दे प्रोड्यूस साउंड. आप देखिए क्या होता है कि जो मेटल्स हैं वो क्या करती हैं कि उनसे एक अच्छी सी साउंड आती है. इसीलिए जनरली क्या होता है कि हम जो मंदिर में घंटी होती है वो मेटल की लगी होती है, क्योंकि जब
जब हम उसको टच करते हैं तो बहुत अच्छी आवाज़ आती है। इसके अलावा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर मेटल्स का इस्तेमाल होता है कि अच्छी सी जो है आवाज़ देती हैं, सॉनरस होती हैं। अब हम नॉन मेटल्स को देखते हैं तो नॉन मेटल्स मे बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब जैसे अगर मेटल सॉलिड्स होती हैं तो नॉन मेटल कैन बी सॉलिड स्टेट, कैन बी इन लिक्विड स्टेट और कैन बी गैसेस। नॉन मेटल्स विच आर सॉलिड्स आर ब्रिटल। अब क्या होता है कि जो नॉन मेटल सॉलिड रूप में होती हैं जनरली वो बड़ी जल्दी से टूट जाती हैं। अब डायमंड जो है इट इज द हार्डेस्ट। अब देखिए सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस जो होता है वो डायमंड होता है। नॉन मेटल्स डू नॉट हैव लस्टर। अब हमने देखा कि जैसे मेटल्स के अंदर एक चमक होती है, नॉन मेटल्स के अंदर कोई चमक नहीं होती है। दे हैव ए डल लस्टर, तो उनका जो सरफेस है वो डल होता है। नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। अब इनके जो मेल्टिंग पॉइंट है बहुत लो होते हैं। एंड नॉन मेटल्स आर नॉट मेलेबल। अब नॉन मेटल्स को क्या है, हम जिस तरह से इनकी शीट्स बना सकते थे, इनकी हम शीट्स नहीं बना सकते थे, कैन नॉट बी बिटन इनटू शीट्स। वेयरएज नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल। जिस तरह से हम इनसे वायर्स बना सकते हैं, नॉन मेटल डक्टाइल नहीं होती हैं, इसलिए हम इनसे वायर्स नहीं बना सकते हैं। नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट। अब जो क्या होता है, नॉन मेटल से हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों पास नहीं होती हैं, इसलिए हम उनको कहते हैं बैड कंडक्टर होते हैं। लेकिन यू नो स्टूडेंट्स, ग्रेफाइट जो होता है दैट इज ए वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और आपको पता है ग्रेफाइट जो है बहुत सारे जैसे हमारे सेल्स वगैरह में यूज किया जाता है। नॉन मेटल्स आर नॉट सोनरस। नॉन मेटल से क्या होता है, उनसे आवाज़ अच्छी पैदा नहीं की जा सकती जैसे कि मेटल सोनरस होती है। नॉन मेटल्स आर नॉट सोनरस, दे कैन नॉट प्रोड्यूस साउंड। अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं दोनों की। रिएक्शन विद ऑक्सीजन, सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती हैं तो क्या होता है। मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटालिक ऑक्साइड। स्टूडेंट्स, जब भी कोई चीज जैसे ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके तो उसका क्या बना देती है, ऑक्साइड। दीज ऑक्साइड्स आर बेसिक। ये जो ऑक्साइड्स होते हैं कैसी नेचर होती है, दे आर बेसिक ऑक्साइड बिकॉज दे रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म बेसिस। अब क्या होता है, जब हम देखेंगे ये जो ऑक्साइड है जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बेस बनाता है। फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम बर्न्स इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैंने अभी आपको बोला जैसे ही देखिए मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर देगा तो क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब जब मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम वाटर के साथ ट्रीट करते हैं रिएक्ट करके, ये बना देता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या है, एक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है। और उसी तरह से जो नॉन मेटल होती हैं दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म नॉन मेटालिक ऑक्साइड। अब अगर वो मेटालिक ऑक्साइड बनाते हैं, मेटालिक ऑक्साइड, तो ये क्या बनाती हैं, नॉन मेटल बनाते हैं नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स। दीज ऑक्साइड्स आर एसिडिक। वो क्या थे, बेसिस। ये क्या है, एसिडिक इन नेचर बिकॉज दे रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म एसिड। आगे इन्होंने बनाया था बेस, ये बना देंगे एसिड। अब हम देखते हैं सल्फर बर्न्स इन एयर टू फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड। अब जब सल्फर है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगी बन जाएगी सल्फर डाइऑक्साइड। अब जब सल्फर डाइऑक्साइड इट विल रिएक्ट विद वाटर, इट विल फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड। स्टूडेंट्स, सो यू सी कि जब कोई भी ऑक्सीजन के साथ मेटल हो या नॉन मेटल हो वो कंबाइन करता है तो उसका ऑक्साइड बन जाता है। यहाँ भी ऑक्साइड बना, यहाँ भी ऑक्साइड बना। लेकिन जब वाटर के साथ ऑक्साइड ने रिएक्ट किया तो हमारे पास ये क्या बन गया, बेस बन गया। ये बन गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड विच इज ए बेस, और यहाँ पे ये एसिड बन गया जिसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड। तो इस तरह से मेटल और नॉन मेटल्स जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती हैं तो डिफरेंट उनका जो है नेचर रहता है, डिफरेंट तरह से रिएक्ट करती हैं। Now, reaction with water. Metals react with water to form metal hydroxide and hydrogen. For example, sodium reacts with water to form sodium hydroxide and hydrogen. Students, आप देखेंगे जैसे ये सोडियम है, now when it will combine with water, it will form sodium hydroxide and कौन सी गैस निकली, हाइड्रोजन गैस।
कौन सी गैस निकल रही है? हाइड्रोजन। तो क्या होता है, जब भी मैटर्स वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं, एक तो हाइड्रोक्साइड बना देती है और गैस रिलीज का नाम होता है हाइड्रोजन। उसी तरह से अगर हम मैग्नीशियम का एग्जांपल देखते हैं, मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड अगेन द गैस इज हाइड्रोजन। ऑलराइट, बट नॉन मैटर्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। अब नॉन मैटर क्या करती हैं? पानी के साथ रिएक्ट ही नहीं करती हैं। थर्ड, रिएक्शन विद एसिड। नाउ विल सी क्या होता है जब एसिड के संपर्क में आती हैं। मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स टू फॉर्म मेटालिक सॉल्ट्स एंड हाइड्रोजन। अब हम देखेंगे क्या होता है जब मेटल जो है किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करेंगी तो उसका एक सॉल्ट बन जाता है और अगेन गैस जो रिलीज होगी वो हाइड्रोजन गैस होती है। फॉर एग्जाम्पल विल सी जिंक रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl के साथ जब है रिएक्ट करेगी तो बन जाएगा जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। सी जिंक ने क्या किया, 2HCl, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जिंक रिएक्ट कर रहा है और बन गया जिंक क्लोराइड और साथ में ये अलग हो गया, ये हो गया हाइड्रोजन गैस। ऑलराइट, तो मोस्ट नॉन मैटर्स डू नॉट, अब क्या होगा, अगेन नॉन मेटल जो होती हैं वो रिएक्ट ही नहीं करती हैं एसिड के साथ। ऑलराइट, सम नॉन मेटल्स लाइक सल्फर रिएक्ट विद कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। अब क्या होता है, कुछ नॉन मेटल जैसे कि हमने आपको बताया कि जैसे सल्फर है वो कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बना देती है, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कई बार जो है मीन्स एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बट जनरली क्या होता है नॉन मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट ही नहीं करती हैं। नेक्स्ट वी सी मेटल्स रिप्लेस मेटल। अब हम देखेंगे एक मेटल कैसे दूसरी मेटल को परे धकेल देती है। ए मोर रिएक्टिव मैटर। अब क्या होता है, कुछ मैटर बड़ी तेज होती है रिएक्शन करने में और वो ज्यादा रिएक्टिव होती हैं। इट विल रिप्लेस ए लेस रिएक्टिव मैटर। अब वो मोर रिएक्टिव क्या करेगी, लेस रिएक्टिव को जो कमजोर होगी यानी कि उसको पीछे धकेल देती है फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। देखिए एग्जांपल आपको बताते हैं, मैग्नीशियम रिप्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन टू फॉर्म मैग्नीशियम सल्फेट एंड कॉपर। देखिए मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ, मैग्नीशियम जो है जब रिएक्ट करिए कॉपर सल्फेट के साथ। अब क्या हुआ, मैग्नीशियम जब कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करती है तो मैग्नीशियम ने क्या किया, कॉपर सल्फेट को पीछे किया और मैग्नीशियम जो है सल्फर के साथ लग जाती है, इट विल बिकम मैग्नीशियम सल्फेट। इसने क्या किया, मैग्नीशियम ने कॉपर को पीछे कर दिया और इसने अपने आप सल्फेट के साथ जुड़ जाती है, बना देती है मैग्नीशियम सल्फेट और साथ में कॉपर अलग हो जाता है। तो क्या हुआ, मैग्नीशियम ने कॉपर को अलग किया तो मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू कॉपर। इसी तरह से जब जिंक जो है, जिंक रिप्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट। इसी तरह से अगर हम जिंक और कॉपर सल्फेट को रिएक्ट करते हैं तो हम देखेंगे अगेन जिंक भी वही करता है, जिंक it will combine with sulfate सॉरी एंड कॉपर को परे कर देगा तो जिंक सल्फेट बन जाता है, अगेन कॉपर अलग हो जाता है। तो इससे हमें क्या देखा हमने कि ये ज़्यादा रिएक्टिव मैटर वीक रिएक्टिव मैटर को परे कर देती है। उसी तरह से आयरन रिप्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन टू फॉर्म आयरन सल्फेट। अब क्या ये दिस इज आयरन, दिस इज आयरन, फेरस भी हम इसे कहते हैं। जब कॉपर सल्फेट के साथ कंबाइन करता है इसे बना दिया फेरस सल्फेट और अगेन कॉपर अलग होगी। तो हम देख रहे हैं तीनों मैटर, चाहे वो मैग्नीशियम है, जिंक है, फेरस है या आयरन है, इसका मतलब ये हुआ कि वो कॉपर की अपेक्षा ज़्यादा रिएक्टिव है और वो कॉपर को अलग कर देते हैं, कॉपर को पीछे कर देते हैं। सो दीज मैग्नीशियम, जिंक एंड आयरन आर more reactive as compared to copper. Based on the reactivity of metals, they can be arranged in decreasing. अब क्या होता है, हम एक ना सीरीज बना देते हैं कि उनकी किस तरह से रिएक्शन है, रिएक्टिविटी है। एक्टिविटी सीरीज जब हम देखें, अरेंजिंग ऑफ मेटल्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर। स्टूडेंट्स कौन सा ऑर्डर है ये, डिक्रीजिंग ऑर्डर है, मीन्स ऊपर से नीचे की ओर अगर हम आते हैं तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी दिखा रहा है, डिक्रीज हो रही है उनकी रिएक्टिविटी और हम उसको कहते हैं एक्टिविटी सीरीज। तो अगर हम देखेंगे यहाँ से ये नीचे की ओर जब हम आ रहे हैं तो एक्टिविटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि पोटाशियम इज द मोस्ट रिएक्टिव, देन सोडियम लेस रिएक्टिव, मैग्नीशियम उससे कम, एल्यूमिनियम उससे कम, जिंक और कम, आयरन और कम, लेड और कम, कॉपर। अब
देखिए अभी हमने पीछे के एक्सरसाइज में किया, मैग्नीशियम के द्वारा हमने एग्जाम्पल देखा और जिंक का देखा। तो अब देखिए कॉपर इतना नीचे है, कॉपर इतना लेस रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू, अब देखिए पोटाशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, दीज आर मोर रिएक्टिव एंड कॉपर कितनी इस सीरीज में कितनी नीचे है देन सिल्वर एंड गोल्ड। अगर हम इसको सारों को देखें तो आई कैन टेल यू दैट क्या है कि जो गोल्ड है वो सबसे नीचे है। इसका मतलब होगा गोल्ड जो है सबसे लीस्ट रिएक्टिव है एज कंपेयर टू पोटाशियम। मोस्ट रिएक्टिव इज पोटाशियम एंड लीस्ट रिएक्टिव इज गोल्ड, सिल्वर। दैट इज व्हाई वी मेक द ज्वेलरी फ्रॉम सिल्वर एंड गोल्ड, क्योंकि वो रिएक्ट नहीं करते हैं। Noble metals, metals like gold, silver, platinum retain their luster because they do not react with air, water or acid. So they are called noble metal. अब देखेंगे अब क्या होता है, कुछ मेटल जब एयर के संपर्क में आती है या ऑक्सीजन के संपर्क या वाटर के संपर्क में आती है ना, कांटेक्ट में आती है, तो उनकी जो चमक है वो फीकी पड़ जाती है, खराब हो जाती है। तो ऐसी मेटल्स जैसे कि गोल्ड है, सिल्वर है, प्लैटिनम है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी चमक में फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो एयर के साथ या वाटर या एसिड के साथ रिएक्ट ही नहीं करते। ऐसी मेटल स्टूडेंट्स, उनको हम क्या कहते हैं, नोबल मेटल्स। The metals which do not react with air, water or acid, these are known as noble metals। और देखिए आपने देखा है कि हमने एग्जांपल दिए गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम। अब गोल्ड जो है कहता है उसको एक्वा के अंदर हम जो है डिसॉल्व कर सकते हैं, जो कि एक मिक्सचर होता है नाइट्रिक एसिड एंड कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इन द रेशियो ऑफ 1:3। प्योर गोल्ड जो होता है ना स्टूडेंट्स, वो 24 कैरेट का होता है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। 24 कैरेट का जो गोल्ड होता है बहुत सॉफ्ट होता है एंड इट कैन नॉट बी यूज फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट। तो उसके ऑर्नामेंट बनाने के लिए गोल्ड को थोड़ा हार्ड बनाया जाता है। तो इसलिए क्या किया जाता है, या तो सिल्वर के साथ या फिर कॉपर के साथ मिक्स किया जाता है, और तब ये जो गोल्ड है ना स्टूडेंट्स क्या कहलाता है, 22 कैरेट। मीन्स ओरिजिनली अगर हम देखें तो गोल्ड बहुत सॉफ्ट होता है, 24 कैरेट्स का होता है और बहुत सॉफ्ट होता है, लेकिन ज्वेलरी बनाने के लिए थोड़ा सा उसको हार्ड बनाया जाता है और उसके अंदर मिक्सिंग की जाती है या तो सिल्वर की या कॉपर की, तब उसकी कैरेट वैल्यू जो है वो चेंज हो जाती है, 24 से 22 आ जाती है। और जनरली जो हम ऑर्नामेंट्स जो पहनती हैं लेडीज, वो 22 कैरेट गोल्ड का जो है वो पहनती हैं। देन अब है यूजेस क्या है हमारे पास, बहुत यूजेस हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के। सबसे पहले आयरन, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग पेन्स, नेल्स, नट्स, बोल्ट्स, टूल्स, मशीन्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, ब्रिजेस। इतना मजबूत होता है आयरन, तो बहुत सारी चीज़ों में, पिन बनाने में, कील बनाने में, नट बोल्ट बनाने में, बहुत तरह के औजार बनाने में और बिल्डिंग बनाने में, पुल बनाने में आयरन का इस्तेमाल होता है, क्योंकि बहुत इसके अंदर स्ट्रेंथ होती है, मजबूती होती है। एल्यूमिनियम इज यूज फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स, बर्तन बनाने का काम करता है। वायर्स बनाते हैं, इससे हम फर्नीचर बनाते हैं एल्यूमिनियम का, एयरक्राफ्ट के पार्ट्स बनाते हैं, बहुत सारे व्हीकल्स बनाने में यूज होता है, कई तरह की मशीन बनाने में, एंड फॉर पैकिंग फूड एंड मेडिसिन। आपने देखा एल्यूमिनियम फॉयल जो होती है ना स्टूडेंट, जिसके अंदर आप अपना फूड पैक करते हैं, लंच पैक करते हैं, एल्यूमिनियम फॉयल, वो एल्यूमिनियम से ही बनी होती है। और आपने देखा है जो हमारी मेडिसिन की जो पैकिंग होती है, दैट इज ऑल्सो मेड फ्रॉम वेरी थिन शीट ऑफ एल्यूमिनियम। Next is the copper. Copper is used for making wires. अब हमारी जो बिजली की तारें होती हैं वो कॉपर वायर्स होती हैं, क्योंकि इट इज़ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वैसल्स, कॉपर के बर्तन होते हैं, लोग उसके अंदर पानी रात को डालते हैं और पीते हैं, अच्छा होता है सेहत के लिए। इलेक्ट्रिकल गैजेट्स जो है हम जो है इसके बने होते हैं। गोल्ड, इट इज यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी। नीली गोल्ड में क्या है, ज्वेलरी बनाई जाती है। इसके अलावा गोल्ड के सिक्के जो हैं, हम जैसे त्योहारों पे गोल्ड के सिक्के लेते हैं, उसको अपनी प्रॉपर्टी के रूप में रखते हैं। एंड इवन मेडल्स, मेडल जो है दिया जाता है जब भी कोई गेम्स होती हैं या और चीज़ों में, बहुत सारे कॉन्टेस्ट में, बहुत सारे कॉम्पिटिशन में मेडल, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल दिया जाता है। वो सचमुच गोल्ड क्यों नहीं होता है, उसके ऊपर उन्होंने उसको पानी चढ़ाया होती है, प्लेटिंग की होती है, तो पर वो गोल्ड मेडल कहलाता है। उसी तरह से जो सिल्वर है वो भी ज्वेलरी बनाने के लिए, कॉइन्स और मेडल्स बनाने के लिए यूज होता है। देन इज द प्लैटिनम। प्लैटिनम इज ऑल्सो वेरी एक्सपेंसिव एंड वेरी नाइस मेटल। इट इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी। स्टूडेंट्स जनरली आपने देखा होगा लोग जो है
डायमंड की रिंग पहनते हैं। तो जो डायमंड और प्लैटिनम का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। क्या होता है कि जनरली जो डायमंड है वो प्लैटिनम, जो कि आपने प्लैटिनम देखो बस सिल्वर से कलर का जो है आपको दिखाई देता है, बहुत अच्छी चमक होगी। तो प्लैटिनम का इस्तेमाल भी ज्वेलरी बनाने के लिए, इलेक्ट्रिकल गजेट्स बनाने के लिए, और प्लग्स इन व्हीकल्स के अंदर जो भी प्लग्स होते हैं वो प्लैटिनम के बने होते हैं। सोडियम कंपाउंड्स आर यूज्ड एज कॉमन सॉल्ट। अब सोडियम आपने देखे सोडियम क्लोराइड जो हम नमक खाते हैं ना अपनी सब्जी में डालते हैं, वो सोडियम NaCl सोडियम जो है हम लिखते हैं स्टूडेंट्स, सोडियम का फॉर्मूला Na है, और अगर हम इसके अंदर क्लोराइड मिला देते हैं, क्लोरीन मिला देते हैं, NaCl बन जाता है, एंड दैट इज अ कॉमन सॉल्ट वी यूज। और बहुत तरह के केमिकल और बनाए जाते हैं। कैल्शियम, these are used for making cement and glass। जो ग्लास होते हैं ना, कांच और सीमेंट बनाने के लिए हम कैल्शियम का इस्तेमाल करते हैं। बहुत अच्छे अच्छे यूजेस हैं। इसके अलावा हम देखिए नॉन मेटल के यूजेस अगर हम देखें, सल्फर इज यूज फॉर मेकिंग सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो बनाने के लिए हमें सल्फर का इस्तेमाल करते हैं, और बहुत तरह के मेटल सॉल्ट्स बनाते हैं। अब ऑक्सीजन जो है उसका क्या इंपॉर्टेंस है, उसके बिना तो हम जिंदा ही नहीं रह सकते हैं। तो हमें सांस लेने के लिए, रेस्पिरेशन करने के लिए सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, और इवन जलने के लिए, जलाने के लिए, किसी बर्निंग के लिए क्या चाहिए होता है, हमें ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड। ऑक्सीजन हेल्प्स इन बर्निंग। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो हम जला ही नहीं सकते हैं। नाइट्रोजन, इट इज यूज फॉर मेकिंग is used for making ammonia, which is used for making fertilizer। आपको पता है अमोनिया की जो है, अमोनिया फर्टिलाइजर जो NPK खाद होती है, जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश में NPK जो है फर्टिलाइजर्स होती है, बहुत अच्छी होती है पौधों के लिए। तो जो नाइट्रोजन जो है, आपको पता है अमोनिया का फार्मूला जो है NH3 होता है। तो किससे बनेगा ये? नाइट्रोजन से। अमोनिया बनता है नाइट्रोजन से। तो क्या है कि नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट है और फर्टिलाइजर बनाने के काम आता है। हाइड्रोजन, इट इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग अमोनिया। देखिए हाइड्रोजन लगा हुआ है अमोनिया के अंदर, विच इज यूज फॉर मेकिंग फर्टिलाइजर में काम होता है। एंड रॉकेट्स के अंदर जो फ्यूल डाला जाता है ना, दैट इज हाइड्रोजन। और वेल्डिंग, जब हम बहुत सारी चीज़ों की वेल्डिंग करते हैं, आपस में उनको जोड़ा जाता है, वेल्डिंग की जाती है, तो हाइड्रोजन का इस्तेमाल करते हैं। एंड क्लोरीन, इट इज यूज फॉर मेकिंग किलिंग जर्म्स। आपने देखा है जो पानी है, प्यूरिफिकेशन जब उसकी की जाती है, और उसके अंदर फिर फाइनली जर्म्स को मारने के लिए हम क्लोरीन टैबलेट्स जो है क्लोरीन यूज़ करते हैं, क्लोरीन यूज़ करते हैं, ताकि उसके अंदर जो जर्म्स हैं वो पानी के अंदर जो है, पानी के अंदर जर्म्स है वो मर जाए और पानी हमारा प्यूरिफाइड हो जाए। आयोडीन, इट इज यूज फॉर मेकिंग टिंचर आयोडीन, विच इज एन एंटीसेप्टिक। जब चोट लग जाती है तो हम क्या करते हैं, टिंचर लगाते हैं या आयोडीन लगाते हैं, क्योंकि वो एक एंटीसेप्टिक का काम करती है उस जगह पे, ताकि जो जर्म्स हैं वो अटैक ना कर पाए और हमारी हीलिंग हो जाए। इसके अलावा स्टूडेंट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है एलॉयज। एलॉय इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ मेटल विद अदर मेटल। और अब क्या होता है कि कई बार ना कोई हमें और अच्छी चीज़ चाहिए होती है, तो हम क्या करते हैं, एक मेटल को दूसरी मेटल के साथ या एक मेटल को नॉन मेटल के साथ स्टूडेंट जोड़ देते हैं, जब उसको कंबाइन कर देते हैं, तो जो हमारी एक नई चीज़ बनती है ना, उसको हम क्या कहते हैं, एलॉय। और उसके प्रॉपर्टीज दोनों की अपेक्षा बहुत अच्छी होती हैं। तो आप देखिए एलॉय कैसे बनेगा, जब हम क्या करते हैं, एक मेटल को दूसरी मेटल के साथ या एक मेटल और नॉन मेटल को कंबाइन करके बनाया जाता है, और जो भी प्रोडक्ट बनता है उसको हम कहते हैं एलॉय। अब जैसे स्टील है, देखिए स्टील किससे बना, आयरन और कार्बन को जोड़ने से बना, और इसका इस्तेमाल कंस्ट्रक्शन ऑफ टूल्स, मशीन्स, टैंक्स, व्हीकल्स, शिप्स, रेल्स, बिल्डिंग, ब्रिजेस, डैम। अब हम देखते हैं जनरली जो प्रॉपर्टी होती है ना उनकी और बेटर हो जाती है, और बहुत सारी चीज़ों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब स्टेनलेस स्टील से तो आप वाकिफ हैं, कितने सारे बर्तन बनते हैं। अब स्टेनलेस स्टील स्टूडेंट एक एलॉय है, क्योंकि ये बना है आयरन एंड क्रोमियम से। किससे बना, आयरन एंड क्रोमियम को मिक्स किया, और इसके मेनली हम क्या करते हैं, यूटेंसिल्स बनाते हैं, कटलरी बनाते हैं घर के अंदर जो है, हम जो भी यूज इस्तेमाल करते हैं, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जो भी ऑपरेशन थिएटर में, हॉस्पिटल्स में यूज होते हैं इंस्ट्रूमेंट, वो स्टेनलेस स्टील के बनाए जाते हैं। ब्रास इज वेरी ब्यूटीफुल टू बी सीन। तो ब्रास किससे बना, कॉपर और जिंक से। इसके भी ब्रास के बर्तन बनाते हैं, हैंडीक्राफ्ट बनाते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में इसका इस्तेमाल होता है। ब्रॉन्ज इज तांबा जो है, आपने देखा ब्रास के बहुत सुंदर जो है हम डेकोरेटिव आइटम्स बनाते हैं, ब्रॉन्ज भी बहुत सुंदर होता है। ये बना कॉपर और टिन से, और इसकी क्या स्टैचू, बहुत सुंदर तांबे की मूर्तियां होती हैं, मेडल्स बनाए जाते हैं। कांस्य पदक, जिसको हम कांस्य पदक हम कहते हैं, कांस्य पदक जैसे जनरली गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल
एंड फाइनली ब्रॉन्ज मेडल हम कहते हैं। तो घंटियां बनाने के लिए, ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए, मैग्नेट बनाने के लिए ब्रॉन्ज का इस्तेमाल किया जाता है। देन एक और आपने सुना होगा एल्निको, एक एलॉय है जो कि आयरन, एल्यूमिनियम, निकल और कोबाल्ट 4 चीजों को बनाने से मिलाने से बनता है, सॉरी, एंड इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग मैग्नेट्स। एल्निको इज यूज्ड फॉर मेकिंग मैग्नेट्स। एंड फाइनली ड्यूरेरियम, इट इज मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम एंड मैग्नीज। इनको कंबाइन करके जो है एक एलॉय बनता है और इसका यूज क्या है, इट इज यूज फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स, प्रेशर कुकर्स। आपने देखा प्रेशर कुकर एक अलग तरह के मेटल के बने होते हैं, तो वो एक एक्चुअली में क्या होता है, एलॉय। क्या होता है, एलॉय होता है और उसका नाम है ड्यूरेरियम। और बहुत सारे व्हीकल्स के पार्ट एंड इवन एयर का क्राफ्ट बनाने के लिए यूज होते हैं, बहुत ड्यूरेबल होते हैं। तो एलॉय स्टूडेंट्स एक ऐसा मिक्सचर होता है जिसके अंदर या तो 2 मेटल या एक मेटल और नॉन मेटल का इस्तेमाल किया जाता है और उनकी जो प्रॉपर्टी है बहुत अच्छी हो जाती है, इसलिए इनका बहुत हम यूज, इनको कई सारी चीजें बनाने में इनका यूज हम कर सकते हैं। अब एक है प्रोसेस कोरोजन। अब क्या होता है, आपने देखा होगा सरफेस ऑफ सम मेटल्स गेट्स corroded when exposed to moist air for a long time. This is known as corrosion. आप देखेंगे कई बार क्या होता है, जो मेटल जो है ना बहुत देर तक एक नमी के संपर्क में आती है तो उसका जो मेटल जो है ना वो खराब हो जाती है, इसको हम कोरोजन कहते हैं। अब आपने देखा और कोरोजन क्या होता है, यानी कि जंग जो है लगना। तो क्या होता है, आप देखेंगे कि इसको हम बचाने, अपने मेटल को, हमारी मेटल खराब हो जाती है तो इसको बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि कोरोजन जो है इसको कैसे बचा सकते हैं, अप्लाइंग ऑयल और ग्रीस। अगर हम उस मेटल को उसके ऊपर ऑयल या ग्रीजिंग करके, ग्रीस लगा के रख देते हैं तो उसको जंग नहीं लगता। अब क्या होगा कि इसकी कोटिंग हो जाती है तो एयर और जैसे ऑक्सीजन या वाटर के संपर्क में मेटल नहीं आती है, हमारी मेटल प्रिवेंट हो जाती है। अप्लाइंग पेंट, या फिर हम क्या करते हैं, कई बार पेंट लगा देते हैं, पेंटिंग कर देते हैं, पेंट कर देते हैं उसको। देन एक और प्रोसेस है गैल्वेनाइजेशन। हम क्या करते हैं, अपने मेटल को कोट कर देते हैं, जैसे कि जिंक। हम क्या करते हैं, अपने मेटल के ऊपर जिंक की कोटिंग कर देते हैं, इसको हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। और हमारी जो मेटल है वो आयरन जो है वो उसको कोरोजन नहीं होता है। एक और तरीका है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब देखिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं, हम कोटिंग कर देते हैं, किससे, जैसे कि क्रोमियम, टिन, बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा हम कहते हैं कोटिंग कर देते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग हम इसको कहते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं। तो भी क्या होता है, जो हमारी मेटल है वो उसको कोरोजन नहीं होता है। एंड देन अभी आपको मैंने बताया एलॉइंग तो एक प्रोसेस है ही। जब भी जैसे आयरन है इसको एलॉय कर देते हैं हम क्रोमियम के साथ या निकल के साथ, तो क्या होता है, स्टेनलेस स्टील बन जाता है। और क्या होता है, स्टेनलेस स्टील जो है इट इज रेजिस्टेंट टू कोरोजन, मतलब कि इसको कोरोजन नहीं होती है, इसको जंग नहीं लगता है। तो एलॉय करने का तरीका, हम मेटल को दूसरी मेटल के साथ या नॉन मेटल के साथ कंबाइन करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देते हैं, जिसको कि हम क्रोमियम के द्वारा हम क्या है इसके ऊपर कोटिंग कर देते हैं। गैल्वेनाइजेशन में हम उसकी कोटिंग जिंक के साथ करते हैं, या फिर हम पेंट अप्लाई कर देते हैं, या फिर हम ऑयल और ग्रीस अप्लाई कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारी जो कोरोजन है वो होने से बच जाती है। अभी मैं आपको एक बताती हूँ एक्सपेरिमेंट क्या है। एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है कि अगर हम क्या करते हैं, 3 टेस्ट ट्यूब्स लेते हैं और उसके अंदर क्या करते हैं हम स्टूडेंट्स कि उसके अंदर ना हम आयरन नेल, मतलब एक एक कील आयरन की जो है ना कील होती है उसको हम डाल देते हैं। तो हम क्या करते हैं, और सबसे पहले जो है हम एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड डाल देते हैं। पहली टेस्ट ट्यूब में एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, यानी कि ऐसा इसको डालते हैं ताकि उसके अंदर जो भी नमी है ना थोड़ी सी वो उसको सोख, एनहाइड्रस है, एनहाइड्रस मतलब उसके अंदर पानी की मात्रा नहीं है, वो पानी को एब्जॉर्ब कर सकता है। और दूसरी में क्या करते हैं हम कि बॉइल्ड वाटर डाल देते हैं जिससे कि हमने ऑक्सीजन निकाली हुई है। दूसरी टेस्ट ट्यूब में हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन जो है जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन माइनस है, निकाल दिया हमने, डाल दिया। और तीसरी में हम क्या करते हैं, पानी डालते हैं, H2O हमने डाला तो और इनको हमने 3-4 दिन के लिए रख देते हैं। इसमें हमने एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड डाला, इसके अंदर हमने बॉइल्ड वाटर डाला जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है, और तीसरे के अंदर हमने क्या किया, वाटर डाल दिया। हम इनको 3-4 दिन के लिए रखते हैं। हम देखेंगे फर्स्ट और सेकंड में जो है कील जो होती है आयरन की उसको जंग नहीं लगता है, रस्ट नहीं लगेगा। वेयरएज इसमें जो है ये जो है इसके अंदर क्या होता है, कील को जंग लग जाता है। अब क्या हुआ स्टूडेंट्स कि ये जो नेल है इट वाज इन कांटेक्ट विद द ऑक्सीजन बिकॉज वी हैव वाटर एंड वाटर हैज ऑक्सीजन। सी वाटर
water has oxygen. So this nail was in contact with oxygen, so it has rusted, whereas others and water, दोनों चीजें, ऑक्सीजन की भी ऑक्सीडेशन हो गया इसका और साथ में वाटर तो है ही है, तो नमी भी मिली इसको और सब मिला, तो इसको जंग लग गया, उन दोनों को नहीं लगता है. So students, here we finished with a chapter about metals and non-metals. So we have seen how metals and non-metals are different from each other because they all have different properties, and what are the various uses in our daily life for the metals and non-metals. I hope you must have understood everything, and try to write your answers when you will get the assignments. Revise everything. In case you have any doubts, no problem. Kindly note down your doubts, and we'll definitely have a doubt session when the school opens. And till then, have a nice time, and thank you.